Hello, my dear class 11 students. This is the lecture in continuation with previous lecture for the chapter Kinetic Theory of Gases, and we have already covered in previous lecture what is the concept of ideal or perfect gas and the equation representing perfect gas. We also discussed the assumptions of kinetic theory of gases, concept of pressure exerted by a gas. The result was P is equal to 1 by 3 rho C square, where rho is the density of gas and C square is where C is average velocity of gas molecules at that temperature. Other than that, we have also discussed kinetic interpretation of temperature and RMS speed of gas molecule. Now in this lecture, I am going to discuss with you what are degrees of freedom, what is law of equipartition of energy, and the specific heat calculation for mono, di, and triatomic gases. So let us start from degrees of freedom. What is degree of freedom? Degree of freedom, like its literal sense, is how much a molecule is free to move. For example, if we are having a molecule or any point object, then this point object can move in three dimensions: x, y, or z. So we can say it has 3 degrees of freedom. Okay, so number of degrees of freedom of a dynamical system is defined as total number of coordinates or independent quantities required to describe it completely, the position and configuration of the system. Motion of a body as a whole from one point to another is called translation. Thus, molecule free to move in space has 3 translational degrees of freedom, जैसा मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस किया. There is a generalized formula n is equal to 3a minus r, where n is number of degrees of freedom of the system, a number of particles in system, and r number of independent relations among the particles. For monoatomic gas, as I discussed with you, for a single particle, there is no relation with any other particle, and with no relation, it means R is equal to 0. And if we'll put this value in our formula, n is equal to 3a minus r. So number of atoms are 1, so n is equal to 3, number of atoms are 1 minus 0 relation, so n is equal to 3, so I'll get 3 degrees of freedom. So that is for monoatomic gas we are having 3 degrees of freedom, as number of atoms is 1 and relation is 0. By putting in the formula, n is equal to 3a minus r. Okay, similarly for diatomic gas अगर हम बात करें तो डाइएटोमिक गैस में आपके पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिलेशन हो गया, तो आपका R इज इक्वल टू 1 हो गया और A की वैल्यू आपकी 2 हो गई. तो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे अपने फॉर्मूले से 3a माइनस R, 6 माइनस 5 2. तो ये हमारे पास A की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 1 पुट की हमने, तो n इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1. मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम और सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे. ठीक है. फॉर सिमिलरली अगर हम ट्राइएटोमिक गैस की बात करें तो ये और इंटरेस्टिंग बन जाता है. फॉर ट्राइएटोमिक गैस वी आर हैविंग 2 केसेस. वन इज लिनियर मॉलिक्यूल एंड सेकंड इज ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल. अगर हम लिनियर मॉलिक्यूल की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 रिलेशन है हमारे पास और नंबर ऑफ एटम हमारे पास 3 है. तो इसमें जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे n का, 3a की वैल्यू 3 माइनस रिलेशंस की वैल्यू 2, तो 3 3 जा 9 माइनस 2
7। तो हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे एक ट्राई एटॉमिक गैस के लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 × 3 - 2 7। और अगर वो मॉलिक्यूल हमारा एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो हमारे पास देखो 3 रिलेशन हो गए, R1 R2 और R3, और 3 एटम है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या होगा, A3 हो गया और R3 हो गया। जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 3A - R, 3 3 9 - 3 6, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो इस तरीके से हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है 3A - R। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जब भी किसी एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है, जैसे आपके पास ये सैंपल है गैस का और इसमें आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, तो किसी के पास भी जो एनर्जी होती है, जैसे इसके पास, इस पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है किसी भी एक पार्टिकल के पास, वो एनर्जी आपकी, अगर इस पार्टिकल के पास ई एनर्जी है तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ये एनर्जी उसकी सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव E डिवाइड बाय n energy. So this is known as law of equipartition of energy. According to the equal partition. According to this law, for any dynamical system in thermal equilibrium, the total energy is distributed equally among all the degrees of freedom, and the energy associated with each molecule per degree of freedom is half kBt। क्योंकि हमने अभी पहले कैलकुलेट किया था कि जैसे 3, अभी मैं आपको बताऊंगा, चलो आगे। हाफ kBt जो है ना, वो आपकी एनर्जी है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, वेयर kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें सिस्टम की, तो वो ट्रांसलेशनल में भी है, t माने ट्रांसलेशनल, r माने रोटेशनल एंड v माने वाइब्रेशनल। तो इन तीनों मोड्स में जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होगी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे को लॉ जो है ये हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, उससे पहले हम स्पेसिफिक हीट के बारे में थोड़ा सा समझ लें। स्पेसिफिक हीट होती क्या है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू mc एंड T या डेल्टा T, वेयर डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, m इज द मास ऑफ गैस एंड Q इज द हीट सप्लाइड टू द गैस। तो अगर हम किसी भी स्पेसिमेन को जिसका मास m है उसको Q हीट सप्लाई करते हैं और उसका टेम्परेचर डेल्टा T रेज हो जाता है, तो हम C को इस रिलेशन से डिफाइन कर सकते हैं, वेयर C इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट हमारी डिफाइन होती है जूल या फिर कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस में या पर डिग्री केल्विन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 4.2 जूल हीट देंगे 1 ग्राम पानी को, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाएगा। एंड वाइज वर्सा, अगर हम पानी में से 1 ग्राम पानी में से 4.2 जूल हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसका टेम्परेचर विल ड्रॉप बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हम स्पेसिफिक हीट हमें कैलकुलेट करने में कैसे हेल्प करती है ये चीज़। अगर हम मोनोएटॉमिक गैसेस की बात करें तो मोनोएटॉमिक गैसेस का हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया था 3 है अभी, और हमें पता है कि ये एक लॉ है बोल्ट्जमैन ने जो दिया हमें कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो हाफ kBt होगी। तो हमारी जो एनर्जी पर मॉलिक्यूल है वो आपके पास आ जाएगी 3/2 kBt। 3/2 kBt कैसे आ जाएगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के मोड हैं और इसको ईच मोड की हाफ kBt एनर्जी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 kBt आ गई हमारे पास एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस की अगर हम बात करें
तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/2 RT, क्योंकि आपको पता है कि जब आप Kb को Na से मल्टीप्लाई करोगे फॉर 1 मोल तो वो आपका गैस कांस्टेंट R बन जाता है। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को जब हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से तो वो 1 मोल की एनर्जी बन जाएगी। तो और फिर Kb इंटू Na को मैंने क्या लिख दिया, R, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हमारे पास दो तरह की जो हैं स्पेसिफिक हीट होती हैं, एक होती है Cv और एक होती है Cp। Cv का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि अगर आप गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड होने ना दें, आप उसे गर्म करें क्लोज्ड चैम्बर में, तब आपको पता है कि आपका थोड़ी हीट से चेंज इन टेम्परेचर आप ज़्यादा ला पाएंगे। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट जो है वो कम हो जाएगी, पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर लाने के लिए हीट रिक्वायर्ड कम हो जाएगी। और Cp का मतलब है कि जो गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल है। तो इन जनरल जब आप किसी गैस को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होती है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होएगा। अगर आप उसका एक एंड ओपन छोड़ देंगे टुवार्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होएगा। तो आप गैस को जब हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड भी होएगी, तो उसका चेंज इन टेम्परेचर कम आएगा। तो Cp की वैल्यू जनरली ज़्यादा होती है। Cp और Cv में आपने रिलेशन पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, विच इज़ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये मेयर फॉर्मूला भी कहते हैं हम इसको, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R को। तो Cv क्या हुआ, du बाई dt, चेंज इन हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो Cv की वैल्यू जब हम 3/2 RT को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3/2 R आ जाएगी हमारे पास। अब हमें रिलेशन पता है कि Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, मेयर फॉर्मूला Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। और अगर ये आपने फार्मूला नहीं भी पढ़ा तो भी ये फार्मूला आपको करवा दिया जाएगा जब थर्मोडायनेमिक्स कवर होगा। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये आपका मेयर फॉर्मूला है, M कैपिटल लिखेंगे हम, मेयर्स फॉर्मूला। तो यानी कि अगर आप R ऐड कर देंगे तो वो Cp आ जाएगी। तो 3/2 R में हमने R ऐड किया तो वो 5/2 R बन गया। अब हमारे पास Cp भी है और हमारे पास Cv भी है, और Cp बाय Cv के रेशो को हम गामा कहते हैं, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत यूज़ होता है, आपने देखा होगा। अभी आप पढ़ेंगे अभी आप थर्मोडायनेमिक्स में कि जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं एडियाबैटिक चेंज का तो उसमें गामा का बहुत रोल होता है। तो गामा जो है मोनोटोमिक गैस के लिए उसकी वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड जब हम कर देंगे Cp को Cv से R कट जाएगा 1.67। ऐसे ही अगर हम डायटोमिक गैस के लिए बात करेंगे तो हमने कैलकुलेट किया था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 होते हैं हमारे। और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है वो हाफ KBT होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी, 5/2 KBT। और जब हम फॉर 1 मोल कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 KBT को Na से, और Kb इंटू Na जैसे मैंने अभी आपको बताया R हो जाएगा, तो यू विल गेट 5/2 RT। तो 5/2 RT को डिफ्रेंशिएट करेंगे, Cv इज इक्वल टू du/dt, तो T गायब हो जाएगा, 5/2 इंटू R आ जाएगा। इसमें जब हम R ऐड करेंगे तो 7/2 R हो जाएगा। इस तरीके से गामा की वैल्यू Cp/Cv 1.4 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक आई होप आपको समझ में आ रहा है सारा। ऐसे ही जब हम ट्राइएटॉमिक गैस की बात करेंगे तो ट्राइएटॉमिक गैस के लिए हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी कैलकुलेट की। ट्राइएटॉमिक गैस में हमने लिनियर के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की 7 कैलकुलेट की हमने लिनियर के लिए, और नॉन लिनियर के लिए हमने 6 कैलकुलेट की। तो लिनियर के लिए आपके पास 7/2 RT डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T तो आपके पास 7/2 R आ जाएगा। फिर जब आप इसमें ऐड करेंगे R को तो आपके पास 9/2 R आ जाएगा, तो ये Cp आ गया आपके पास, और 7/2 R Cv है। इन दोनों का आप रेशो लेंगे तो 1.28 गामा आपके पास आ गया लीनियर मॉलिक्यूल के। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 हैं, हाफ KBT एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 KBT आ जाएगा फॉर 1 मॉलिक्यूल। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 मोल ऑफ गैस के लिए, और Kb इंटू Na को मैं क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ। तो ये 3RT आ जाएगा मेरे पास, और 3RT में मैं जब R ऐड कर दूंगा
तो 4 पहले 3RT में R ऐड करने से पहले ये आपके पास, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे CV कैलकुलेट करने के लिए। CV कैलकुलेट करने के लिए जब आप 3RT को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो यू विल गेट 3R। तो ये आपके पास CV आ गया 3R, और इसमें जब आप R ऐड करेंगे तो यू विल गेट CP 3R + R 4R। दोनों का रेशो लेंगे 4/3, तो गामा की वैल्यू आ गई 1.33 फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो इसी तरीके से अगर 3 से आगे हम जाएं तो हमारे जो मोड्स हैं वो कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो एक हम जनरल फार्मूला पढ़ लेते हैं कि अगर पॉलीएटॉमिक कोई भी गैस मॉलिक्यूल हमारे पास है तो 3 तो उसके पास ट्रांसलेशनल मोड होंगे, 3 रोटेशनल मोड होंगे, और उसके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड होंगे जिन्हें हमने F मान लिया। तो अब उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी 3 + FRT। ये 3 + FRT कैसे आया, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो इसमें आप ऐसे समझो कि देखो, आपका ½ kBt ईच ट्रांसलेशनल के साथ और ½ kBt ईच रोटेशनल के साथ, तो यानी कि आपका 3 × ½ kBt प्लस 3 × ½ kBt, यानी कि आपके पास 3 kBt तो आपके पास आ गया ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी का। ईच वाइब्रेटरी मोड की जो एनर्जी होती है वो ½ kBt नहीं होती, ये बात आप याद रखना। ईच वाइब्रेटरी मोड की एनर्जी kBt होती है। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोड की ½ kBt होती है। तो अगर आपके F वाइब्रेटरी मोड है तो F kBt आपकी एनर्जी आ जाएगी वाइब्रेटरी मोड की, और तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो kBt आपका कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा आपके पास 3 + F। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 3 + F और साथ में आपके पास बचेगा kBt। तो अब 3 + F kBt पे बाकी फेनोमेना सेम है। आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मोल के लिए आ जाएगा। Kb × Na को आप R लिख सकते हैं, तो ये 3 + FRT आ जाएगा। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो आपके पास CV आ जाएगी। CV कितनी आ जाएगी डिफ्रेंशिएट करने पे, 3 + FR आ जाएगी। फिर आप इसमें एक R ऐड करेंगे तो ये आपके पास CP बन जाएगी। तो CP की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 + FR बन जाएगी। तो इन जनरल फिर जब आप गामा निकालेंगे तो CP/CV वो आपके पास आ जाएगा 4 + FR / 3 + FR, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास गामा 4 + F या हाँ यही 4 + F / 3 + F आपके पास जनरल फार्मूला आ जाएगा किसी भी पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए जिसके पास F वाइब्रेटरी मोड है। तो पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी के लिए ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच मॉलिक्यूल की एनर्जी ½ kBt होती है, जबकि ईच वाइब्रेशनल मोड के लिए वो एनर्जी kBt होती है। ठीक है, तो बस इसके साथ हमारा काइनेटिक थ्योरी वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एक वीडियो मैं आपसे और शेयर करूँगा इसके अलावा, जिसमें हमारा लास्ट चैप्टर का बीट्स वाला फेनोमेना रहता था, और फिर ये 2 जो आपके लास्ट के चैप्टर हैं काइनेटिक थ्योरी और आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइक ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।